hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Father, we thank you for your presence, oh God. We thank you, Lord. Hallelujah. Riba shaka barianto roshanda. Uraba karaba shakariando roshanda raba. Hallelujah. Let us begin to speak in tongues. थैंक यू जीसस हालेलुया जितने भी हम लोग हैं जिसको भी हालेलुया गैर जुबान का जो ब्लेसिंग मिला है हालेलुया आप लोग गैर जुबान में बात करना स्टार्ट करना थैंक यू जीसस हालेलुया रिबा रोशा का रियांतो रोशांदा लेट द लॉर्ड ओपन आवर स्पिरिचुअल आईज परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे लेट द लॉर्ड ओपन आवर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और हमारे रूहानी समझ को परमेश्वर खोल दे Let there be great light enter into our spirit. और हमारे रूह के अंदर एक उसका उजाला अद्भुत उजाला हमारे अंदर आ जाए Riba shaboro shakariantara sanda. Urababa rose keriandara shandaraba. We glorify you, Lord. We lift up your name, O God. We thank you, Lord. You are our healer. You are our provider. You are our strength. You are our glory, O Jesus. You are our wisdom, O Jesus. We thank you, Jesus, that you live in us. You are with us, O Jesus. Hallelujah. Shabara ribara shakarianto roshanda. We thank you, we thank you, we thank you. We praise you, O God. We praise your holy name. Raborose kerianda rashandaraba. Urababarase keriando roshanda. We want to thank the Lord for this wonderful day. और हम खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए. He has gave us grace or he's enabled us so we can come together and study his word. और उसने हमारे पर दया की है कृपा की है कि हम साथ में आकर उसके खुदा के कलाम को सीख सके. As we started our meeting today, और जिस तरह से आज की मीटिंग हमने आज स्टार्ट किया है, we received the word from Psalms 121. और आज का भजन संगीता 121 से हमने सीखा. Hallelujah. It is written that verse number 2, my help comes from the Lord who made the heaven and earth. और उसमें लिखा है कि मेरी सहायता खुदावन परमेश्वर से आती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है. Let us take this word as a promise word. और हम इस कलाम को हमारे लिए वाचा का कलाम लेंगे. Let us take this word as a rhema from God. और आज ये कलाम हम रेमा वर्ड ले खुदावन से. Maybe in this group maybe many people may have different needs. और हम देखते हैं कि हमारे बीच में हो सकता है हमारी अलग-अलग जरूरतें हो सकती है. Maybe health need. हो सकता है हमारे को चंगाई की जरूरत है. For Yeshua Messiah Church we need hallelujah land building hallelujah and permission from government to worship in UAE. और YMGC के लिए जैसी जरूरत है कि उनको खुद की जगह मिले स्तुति और आराधना करने के लिए. और yes hallelujah and Pastor Raju is already started his prayer hall. He needs some finances. और जैसे भाई राजू को पास्टर राजू है हमारे बीच में उन्होंने सेवकाई के लिए वो बांध रहे हैं घर. And there are so maybe different needs in your life. Maybe you don't want to disclose. अब हो सकता है बहुत सारी अलग-अलग तरह की जरूरतें हो सकती है जो हम किसी को बता भी नहीं सकते. So now you speak to God. God, you send the word that my helps come from you who made the heaven and earth. और हम अभी कहेंगे कि खुदावन तू मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी को करता है. Lord, this is my need and this is the word. Holy Spirit, you perform a miracle in my life. और ये हम कहेंगे खुदावन ये मेरी जरूरत है और ये तेरा कलाम है मेरे जिंदगी में कलाम के जरिए मेरे जिंदगी में काम करना. I believe to experience any miracle or a healing or supernatural blessing in our life, we need the word of God. We need the Holy Spirit. और अगर हमारे जिंदगी में एक अद्भुत कार्य होना चाहिए एक आश्चर्य काम होना चाहिए तो खुदा का कलाम चाहिए और पाखरू चाहिए कार्य करने के लिए. In the life of Abraham, God gave him a word. God gave him a promise. और हम देखते हैं कि अब्राहम की जिंदगी में उसके जिंदगी में काम होने के लिए खुदा ने उसको एक वादा किया. And he believed that promise and he obeyed God. और उसने वो वादा को उसने खुदा के कलाम को उसके आवाज को सुना और उसको उसने मानना शुरू किया. In the time of life, in the right time, God blessed him Isaac. और हम देखते हैं कि सही समय में खुदा ने उसको ब्लेस किया
और उसको आइजैक मिला। And the same example we can see in the New Testament. The Mary believed, Mary received the word, and the Lord released His Holy Spirit upon her. और हम देखते नए करार में मरियम ने विश्वास किया और विश्वास के जरिए पाखरू के जरिए उसकी जिंदगी में अद्भुत कार्य हुआ। So same thing, when we are born again, we received the gospel, we received the word of God, and Holy Spirit transformed our life. और उसी तरह से जब हमने यीशु मसीह के कलाम को लिया और पवित्र आत्मा हमने हमारी जिंदगी को बदल दिया। At the same time, when we see needs in others' life, difficulties in others' life, we know we have the solution. The solution is in the name of Jesus. और जब हम देखते हैं कि दूसरों की जिंदगी में तकलीफ आती है तो हमको पता है कि ये इसका हल सिर्फ यीशु मसीह ही है। So we share the gospel, we give the word of God. When they believe the word of God, the Holy Spirit transforms their life. और हम देखते हैं कि हम जाके उनको सुसमाचार देते हैं, कलाम सुनाते हैं, और जब वो प्रभु यीशु का कलाम सुनते हैं तो पाखरू उनकी जिंदगी में भी काम करता है। We are just a vessel. We deliver the word. Holy Spirit do His work. और हम सिर्फ एक बर्तन है कि हम हमारा काम करते हैं, पर पाखरू असली काम करता है। So we received the word today. Hallelujah. In Psalms 121 verse number 2, my help comes from the Lord who made the heaven and the earth. और हम देखते हैं कि हमारे लिए आज का वादे का कलाम था कि मेरी सहायता यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी को करता है। So lift your hands to the heaven and say, Lord, I thank you. I receive your word. Let your word work wonder in my life, in my family, and in this church in Jesus' name. और हमारे हाथों को उठाकर हम कहेंगे, खुदावन ये कलाम के जरिए मेरे जिंदगी में अद्भुत कार्य कर, बातों को कर जो और मेरे कलीसिया में अद्भुत कार्य कर। Thank you, Father. You are sending hallelujah help from heaven. और खुदावन तेरा शुक्र है कि तू स्वर्ग से मेरी सहायता आती है। I thank you, Lord. Your help is come now. और मैं शुक्र करता हूँ कि तेरी सहायता मुझ पर आ गई है। Your helpers are activated in the name of Jesus. और सहायता करने वाले हमारी मदद के लिए तैयार है। The divine helpers are activated in Jesus' name. और जो स्वर्गीय स्थान से जो सहायता मुझे मिल चुकी है। I thank you, Lord, for the help of the Holy Spirit. और खुदावन मैं शुक्र करता हूँ कि पाखरू की सहायता के लिए। I declare in the name of Jesus. और मैं यीशु मसीह के नाम से कबूल करता हूँ। I am the child of God. I am born of God. I am the temple of the Holy Spirit. मैं यीशु मसीह से जन्मा हूँ, मैं नया सृष्टि हूँ और मैं परमेश्वर के हैकल हूँ। I am a new creation in Christ Jesus. और मैं एक नई सृष्टि हूँ प्रभु यीशु मसीह में। All things are passed away. Everything God has made new in me. और पुरानी बातें मेरी जिंदगी से निकल गई और सब कुछ मेरी जिंदगी में नया हुआ The है। Lord has removed every sin, every sickness, every curses from my life. और खुदावंद यीशु मसीह के जरिए मेरे सारे पापों को माफ किया गया है, मेरे सारे श्राप को निकाल दिया He गया has है। given me the new heart. He has given me the new spirit. और यीशु मसीह के जरिए मुझे एक नया दिल और नई आत्मा मिली है। God's life is in me. His nature is in me. His characters are in me. और यीशु का स्वभाव मेरे अंदर आया है। So I thank you, Father. इसलिए मैं आपका शुक्र करता My हूँ। help come from the Lord who created the heaven and the और earth. मेरी सहायता यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। As a man of God, I release this word over your life. और मैं ये कलाम को आपकी जिंदगी में घोषित करता हूँ। Your help is come in the name of Jesus. और आपकी सहायता यीशु मसीह के जरिए आ गई है। The one who created the heaven and the earth is extending his hand to help you, to bless you. और जो इस दुनिया का करता है उसने अपने हाथ को बढ़ाया है ताकि वो आपकी सहायता कर सके। We especially pray for Deep Chand. Let the Lord's hand touch his knees and heal him completely in Jesus' name. हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद अपना हाथ फजल वाला हाथ दीपचंद के ऊपर बढ़ाए ताकि उसको कंप्लीटली चंगाई मिले। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Can you raise your hand and say thank you, Jesus? अपने हाथों को उठाकर हम खुदा का शुक्र करेंगे। You know why? Thank you, Jesus. हम क्यों शुक्र करते हैं? His mercy are new every day. क्योंकि उसकी करुणा और दया हर दिन नई होती है। Hallelujah. Today He has poured out new grace, new mercy upon our life. आज उसने उसकी कृपा और उसकी दया नए सिरे से हमारे जिंदगी में आज के दिन आई है। Because His mercy is new, therefore we are not perished.
perished, therefore we are not consumed, therefore we are not destroyed, we are alive today. क्योंकि उसके दया हमारे पर रोज नहीं होती है, इसीलिए हम हलाक नहीं होते हैं। खुदावन की दया हमारे पर होती है। Therefore we lift our hands and we say, thank you Jesus for your mercy, for your grace that is new every day. और हमारे हाथों को उठाकर शुक्र करेंगे, लॉर्ड परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, आपका फजल, आपकी दया रोज हमारे जिंदगी में नहीं होती है। Amen. Hallelujah. By praising God, we are honoring God. जब हम खुदावन की स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो हम उसको इज्जत देते हैं। And I had experience whenever we praise God, we are energized. The new strength comes in our spirit and the new strength comes in our body. और जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसका फजल, उसकी सामर्थ हमारे अंदर आ जाती है और नया बल मिलता है। So we were studying about the body of Christ last week. और हम पिछले हफ्ते सीख रहे थे कि खुदा के परमेश्वर के बदन के बारे में। It is a bigger picture about the body of Christ. और ये बहुत बड़ा पिक्चर है एक यीशु मसीह के बदन के बारे में। Many times we were thinking that the group that I belongs to or a denomination which I belongs to is the only the body of Christ. और हम सोचते जिस कलीसिया में हम जाते हैं वही एक कलीसिया खुदा का बदन है। It is the part of the universal body of Christ. पर वो खाली एक हिस्सा है पूरे जगत का जो परमेश्वर का बदन है, उसका खाली वो एक हिस्सा होता है जिस कलीसिया में हम जाते हैं। In the world there is two body. और हम देखते हैं इस दुनिया में दो प्रकार के बदन है। One is the body of Christ that is holy, that is blameless, that is pure. और एक बदन है जो पवित्र है, परमेश्वर का है और पाकीज़गी में चलता है। And second is a sinful body. और दूसरा जो बदन है जो पाप का बदन है। So every person who born without Christ, they born in sinful body. और जो कोई पाप में जन्म लेता है वो पाप के बदन में जन्म लेता है। Is captured by the spirit of death. और मौत ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ होता है। And he is going to destruction because of the sin. और पाप के वजह से वो हलाक होता है। But that is not the good news. पर यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। The Lord sent His Son Jesus. और यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। And Jesus took all our sin upon Him. और यीशु मसीह ने सारे पापों को अपने पर ले लिया। And He gave His forgiveness, His precious blood to us. और उसके लहू के जरिए उसने हमें माफ कर दिया। So He died for us. और वो हमारे लिए मारे गए। He raised from the death. और वो 3 दिन के बाद जिलाए He गए। lives forever. और वो हमेशा के लिए जिंदा है। God revealed this truth to us through the Holy Spirit. और ये सच्चाई हमें पाखरू के जरिए मिली है। And God gave us grace to believe this truth. और खुदावन ने हमारे पर फजल किया ताकि इस सच्चाई के ऊपर हम विश्वास कर सके। Holy Spirit helped us to repent from sin. और पाखरू ने हमें सहायता किया ताकि हम हमारे गलतियों से हम तौबा कर सके। And we can believe the finished work of Jesus Christ. और यीशु मसीह के पूरा काम के ऊपर हम विश्वास करते हैं। So because we believed and we confessed, because we repented, we believed and confessed Jesus Christ is the Lord and Savior. हमने विश्वास किया, तौबा किया और हमारे जिंदगी में काम हो गया। And we are connected or baptized into the body of Christ. और हम यीशु मसीह के उस कलीसिया में जुड़ जाते हैं। This is the first baptism. When we are born again, you are baptized into the body of Jesus Christ. ये हमारा पहला बपतिस्मा होता है जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हम कलीसिया के हिस्सा बन जाते हैं। So 1 Corinthians chapter 12 verse number 13 says, for by one Spirit we are all baptized into one body. 1 Corinthians 12:13. हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Hallelujah. The scripture is very clear. When anyone who repented, forsaken the sin, received Jesus as the Lord and Savior, and confessed He is the Lord, hallelujah, that person is baptized into the body of Jesus Christ. और इसमें हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जो सही रीति से तौबा करता है, मन फिराता है और यू टर्न लेता है और यीशु मसीह को अपना मसीह करके जानता है और बपतिस्मा लेता है, वो यीशु मसीह में
यीशु मसीह के कलीसिया में जुड़ जाता है। So we are in the body of Christ. और हम उसके बदन है। And we studied last week, and we are the body of Christ. और हम यीशु मसीह के बदन के हिस्सा है। Maybe you are in USA, maybe you are in Pakistan, maybe you are in India, but we are all belongs to one Lord. His name is Jesus. हो सकता है जहाँ कहीं भी आप क्यों ना हो, पर आप हर एक उसके बदन के हिस्सा हो। So when we pray for the body of Christ, we are not only praying for the few people, those who are in Abu Dhabi, we are praying for the entire body of Christ, which is united in Christ Jesus. और जब हम दुआ करते यीशु मसीह के बदन के लिए, तो सिर्फ हम एक ही कलीसिया के लिए नहीं, पर जितनी दुनिया में उसका जो बदन है, हर एक हिस्सा है, उसके लिए हम दुआ करते हैं। So it is our privilege to lift our hands and bless the body of Christ. इसीलिए ये परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है ताकि हम हमारे हाथों को उठाकर यीशु मसीह के बदन के लिए हम दुआ कर सकें। As I was meditating today, the Lord was speaking to me, the greatest position the God has given after God to become His sons and daughter. और हमें सबसे बड़ा पदवी जो मिला है यीशु परमेश्वर के बाद कि उसके बेटा और बेटी बनने का। Hallelujah! Are you excited about that? खुदा के बाद अगर कुछ भी एक बड़ा स्थान है, that position is called sons of God. और उसके जो भी ये पोजीशन, जो दूसरा पोजीशन है जो परमेश्वर की तरफ से, वो है आपका परमेश्वर का बेटा या बेटी बनना। खुदा के बाद God is the highest authority. और परमेश्वर सबसे अव्वल नंबर पे है। Hallelujah. After him, hallelujah, if there is anything, hallelujah, great is there, that's called sons of God. That's the daughter of God. और उसके बाद जो अच्छी चीज है वो है कि उसके बेटा और बेटी जो है। Maybe you're not a prime minister of any nation, you may be not a president, but you are in Christ Jesus, you are sons of the living God. हो सकते हैं आप कोई बड़े ऊंचे इस दुनियावी तरीके से आप कोई बड़े ऊंचे स्थान में नहीं है, पर ये हमारे लिए परमेश्वर का वरदान है कि हम उसके बेटे और बेटी कहलाए जाते हैं। I taught about this in another group. We are sons of the living God. हम परमेश्वर के जिंदा बेटे हैं। Hallelujah. Just I will give two reference quickly, so you can meditate that. Hallelujah. In Romans 8:15. और रोमियो 8:15 में लिखता है, Hallelujah. We have received the Spirit of God. We have received the Spirit of His sonship. और हमें वो रूह मिली है जहाँ पर हम उसके बेटे कहलाए जाते हैं। Again, Galatians 4:6, we studied this. Hallelujah. We are His sons. और गलातियों 4:6 में लिखता है कि आप उसके बेटे हो। And you are the sons. God sent His Spirit of His Son into our heart, the Spirit who calls out Abba Father. और उसने हमें उसके रूह के जरिए, वो आत्मा के जरिए हमें उसका बेटा बनाया है ताकि हम परमेश्वर को कह सकते हैं अब्बा पिता। Hallelujah. So you have to speak yourself, Lord, I thank you. Hallelujah. I am your son in Christ Jesus. इसलिए हमें कबूल करना है कि मैं प्रभु परमेश्वर में उसका बेटा हूँ। Amen. Your mind may not agree because it is carnal, it have to be renewed, but what is written, that is final. Lord, I thank you. I am your son. You are given me the highest position on this earth. और आपने खुशी होना चाहिए और कबूल करना चाहिए कि परमेश्वर, मैं शुक्र करता हूँ कि मुझे इतना बड़ा दर्जा आपने दिया है कि आपका बेटा और बेटी बनाया। We have to rejoice in this position. Why God has given this position? So we can have His fellowship. और उसने हमें ये दर्जा दिया है ताकि हम खुशी में रहना चाहिए कि उसने हमें ये दर्जा दिया है ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। World may not recognize us, it's okay, but heaven recognizes, God recognizes, Jesus recognizes, Holy Spirit recognizes, angels recognizes us. हो सकता है ये दुनिया हमें नहीं जानती होगी, नहीं पहचानती होगी, पर स्वर्ग हमें जानता है, परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है और स्वर्ग दूत हमें जानते हैं। Because we received the gift of God called Jesus Christ. क्योंकि हमने यीशु मसीह को पाया है। Hallelujah. Praise the Lord. Are you happy that you are sons of the living God?
क्या आप खुश हैं कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं? Amen. So you have to speak yourself, because this is the highest position on this earth that anyone can get from God. और ये सबसे बड़ा दर्जा है अगर इस पृथ्वी पर परमेश्वर से हमको मिलता है। According to my conviction, it is greater than an apostle, it is greater than a prophet, it is greater than a pastor, it is greater than a teacher, it is greater than a president, it is greater than a prime minister. Hallelujah. To become the sons of the living God. और ये इस सारे पोजीशन से बढ़कर है। हो सकता है आप कहेंगे कि नबी का है, टीचर का है, प्राइम मिनिस्टर का, जो भी इस दुनिया का पोजीशन से सबसे बड़ा पोजीशन है कि हम उसके बेटे हैं। You may be feeling sometimes, oh, I am not an apostle, oh, I am not a pastor, oh, I am not a worship leader. No problem. Hallelujah. God has given you the highest position in Christ Jesus. He calls you, you are my son, you are my daughter. I have purchased you through my blood. और उसने हमें इतना बड़ा दर्जा दिया है कि दुनिया के लोग नहीं जानेंगे, पर वो हमें जानता है, वो हमें पहचानता है और वो कहता है कि आप मेरे बेटे और बेटियां हैं। So why you pray every day? Hallelujah. Not because you are a slave. You pray every day because you know I and my Father is one. He has given me the highest position. So I want to grow in His fellowship. और इसीलिए आप क्यों दुआ करते हैं? आप एक गुलाम है इसीलिए नहीं दुआ करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां उस पोजीशन के, उस राइट, उस अधिकार से आप दुआ करते हो। I am washed by the blood of Jesus. He has made me the new creation. So I have a fellowship with my Father. और आप उस लहू के जरिए साफ हो गए हो और इसके वजह से आप उस परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता रख सकते हो। So we are in the body of Christ. और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के बदन के हिस्सा है। We are the body of Jesus Christ. और हम वो बदन है यीशु मसीह के। Hallelujah. Can we say we are the body of Christ? मैं यीशु मसीह का बदन हूँ। हालेलुया, जोर से बोलो। अरे हम सब लोग हालेलुया यीशु मसीह का बदन है। हम सब लोग यीशु मसीह का बदन में है। आमेन। ये पाकरू ने हम लोगों को उसका बदन में लगा दिया है। पाकरू ने हम लोगों को अंधेरा से निकालकर, शैतान का हाथ से निकालकर हालेलुया उसका उजाला में, उसका बादशाही में लगाया है। He has transformed us. He has brought us together with God. So we are one with God. और हम देखते हैं कि उसने हमें अंधकार से निकाल के उसके उजाले में बिठाया। इसीलिए आज हम यीशु परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। So एक है। Hallelujah. So we are one spirit with God. हम परमेश्वर के साथ एक रूह में है। New creation means one spirit with God. और नए सिरे से जन्म लेना मतलब है यीशु मसीह के साथ एक आत्मा होना। Hallelujah. The new creation means God's presence is dwelling in me. और नए सिरे से जन्म लेना मतलब है यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे अंदर The है। new creation means God has washed me from all my sin, guilt, and He has made me His son. और नए सिरे से जन्म लेना मतलब यीशु मसीह ने मुझे धोकर साफ किया है और उसके जैसा बनाया है। As you are new inside, और जिस तरह से आप नए अंदर हो, you have received the new spirit in you. और एक नई आत्मा आपको अंदर मिली है। So you have to, hallelujah, arise and overcome this carnal nature. इसीलिए आपको अपने इस शारीरिक दशा से उठकर खड़े रहना है ताकि आप आत्मा में जी सके। You have to arise in the spirit. आप अपना रूह में हालेलुया खुदा का कलाम को पकड़ के खड़ा होना चाहिए। खुदा जो बोलता है उसको पकड़कर you have to rule over your carnal nature. और आपको अपने शरीर की शारीरिक दशा से उठकर उसके ऊपर उसको आपने कंट्रोल करना चाहिए। नहीं आप आत्मा में पहले उठना चाहिए, because you are the spirit. आपका आत्मा अभी खुदा ने जिंदा किया है। If you read Ephesians chapter 2 verse number 1 में लिखा है, अभी तुझे खुदा ने यीशु मसीह में जिंदा किया है। मरी हुई रूह को खुदा ने ताकत दी है। मरी हुई रूह को हेवनली लाइफ खुदा ने दिया है। आप अभी अलाइव है। If you want to, you can read Ephesians chapter 2 verse number 1. हम पढ़ेंगे अफिसियों 2:1 में। हालेलुया, जोर से पढ़ना। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया। जोर से बोलो, जिलाया।
उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. Yes, I told there is a two body. One is called sinful body. One is called body of Jesus Christ. और दो तरह के बदन है, एक बदन जो पाप का है और एक बदन है जो यीशु मसीह का है. There is in sight of God there is no denominations. और खुदा के नजर के सामने कोई भेदभाव नहीं है. No denomination. Assemblies of God, Pentecost, Catholic. ऐसा खुदा के नजर में ऐसे डिनोमिनेशन नहीं है. और हम देखते हैं कि खुदावन के नजर के सामने अलग अलग तरह के रिलीजियंस नहीं है. खुदा के सामने सिर्फ दो बदन है. Either you are in darkness or you are in light. और उसके सामने सिर्फ दो बदन है, एक है जो अंधेरे में है और एक जो उजाले में है. अंधेरा से उजाले में आने के लिए रास्ता यीशु मसीह है. और अगर हम अंधकार में हैं तो अंधकार से निकल के अगर उजाले में रहना है तो एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है. And key is the repentance. Without repentance you cannot deliver from darkness. When you truly repent with the help of the Holy Spirit, the Holy Spirit will bring you or draw you or rescue you from darkness to light. और हम देखते हैं कि एक ही जरिया है जहां पर हम अंधकार से निकाल के उजाले में आ सकते हैं. जब सही रीति से हम तौबा करते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं और जानते हैं, उसको अपना मसीह बनाते हैं, तभी हम अंधकार से निकालते उजाले में आते हैं. As long you compromise, as long you enjoy sin, you are destroying yourself. और जब तक आप पाप का मजा लेते हो तभी आप अपने आप को नाश करते हो. And you are destroying yourself. और आप अपने आप का नाश करते हो. That Jesus came to us to save from this wickedness, from this death. और यीशु मसीह आने का मकसद था कि हमें मौत से छुटकारा दे सके. So we just saw in Ephesians chapter 2 verse number 1, उसने हम लोगों को जिलाया है. Hallelujah. He has given us life. Where is the life? Life is in our spirit. और हम देखते हैं कि उसने हमें जिलाया है. कि कहाँ जिलाया है? हमारे रूह के अंदर, हमारे आत्मा में उसने जिलाया है. Therefore we sing, we praise, we say thank you Abba, we love you Father. Why? Because we have the life of God in us. हम स्तुति आराधना करते, एकदम परमेश्वर की आराधना करते, क्योंकि हमारी आत्मा है वो जिलाई गई है. So when you are praising God more, when you are feeding your spirit with the word of God, your spirit become powerful. It will help you to overcome every carnal nature. इसीलिए आपके रूह को आप मजबूत किस तरह से बनाते हो? रोज खुदा के कलाम को पढ़ के, सीख के, तो अपने रूह को आप मजबूत बनाते हो. So where we are now, और अभी हम कहाँ पर हैं? We are in the body of Christ. और आज हम यीशु मसीह के बदन में हैं. We are the part of the body of Christ. और हम यीशु मसीह के बदन के हिस्सा हैं. We are collectively called the body of Christ. हम साथ में पूरी जो दुनिया की जो कलीसिया साथ में मिलकर यीशु मसीह का बदन कहलाती है. When we pray for the body of Christ, the body of Christ will prosper and hallelujah and capture the nations. और जब हम दुआ करेंगे खुदा यीशु मसीह के बदन के लिए, तो ये उन्नति करेगी और तरक्की करेगी और सारे बातों के ऊपर वो फतह पाएगी. So we received salvation as a free gift. हमने यीशु मसीह से एक तोहफा में नजात मिला है. And God has given us the Holy Spirit so we can experience or enjoy this salvation. और यीशु मसीह के जरिए हमें पाखरू मिला है, वो हमें सहायता करता है ये मसीह जिंदगी जीने के लिए. So every born again person has the Holy Spirit in his heart. और जो कोई यीशु मसीह में नए सिरे से जन्म लिया है, उसके अंदर पाक रूह है. Without Holy Spirit you cannot understand the word of God. और बिना पवित्र आत्मा के, बिना होली स्पिरिट के आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाओगे. Without Holy Spirit you cannot spend more time in prayer. और बिना पाक रूह के, बिना पवित्र आत्मा के आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिता नहीं सकते. Without Holy Spirit you cannot love God. You are not able to love God. और बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते. Without Holy Spirit you cannot live in holiness. और बिना पवित्र आत्मा के एक पवित्र जिंदगी आप जी नहीं सकते. Therefore God has given his Holy Spirit. He is in you now, right now. इसीलिए यीशु मसीह के जरिए आपको पाखरू मिला है और जो आपके अंदर निवास करता है. How much you fellowship with him, that much you can be powerful in your life. और जितनी आप उसके साथ संगति करते हो, उसके साथ मेल मिलाप करते हो, उतनी आत्मिक उन्नति आप कर सकते हो. Hallelujah.
Praise the Lord. So, as we are in the body of Christ, और जिस तरह से हम यीशु मसीह के बदन के हिस्सा है, and we received the gift of salvation, we received the gift of righteousness, we received the gift of holiness. और जिस तरह से हमें मुफ्त तोहफे में मिला है पाकीज़गी पवित्रता, So God want to give us the baptism of the Holy Spirit. अभी परमेश्वर चाहता है कि हमें वो पाक रूह का बपतिस्मा दे. It is not compulsory, it is purely your desire to have that gift. ये आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, ये पूरी आपकी ख्वाहिश है, तो तभी आपको मिलती है. Hallelujah. As you desire for that, as you seek for that, और जिस तरह से आप जितनी ख्वाहिश करते हो, जितनी आपके अंदर प्यास है पवित्र आत्मा के लिए, so you will receive freely from Jesus. और आपको यीशु मसीह के जरिए ये मुफ्त में आपको पाखरू मिलता है. So let it be clear in our mind, we are in the body of Christ, we are the part of the body of Christ. तो ये हमारे समझ में आनी चाहिए कि हम परमेश्वर के बदन के हिस्सा है. To strengthen the body of Christ, God want to baptize us with the Holy Spirit and fire. और इस बदन को और मजबूत और तरक्की करने के लिए वो चाहता है कि इस बदन के ऊपर उसकी पाक रूह का बपतिस्मा हो जाए. We are just taking some references. Luke chapter 3:16, Mark chapter 1:8, Matthew chapter 3:11. I will repeat again. Luke chapter 3:16. We can take it as a key scripture. Connecting that Mark chapter 1:8, Matthew chapter 3:11. Hallelujah. Those who are Bible class students, you can take this reference, write down, hallelujah, and you see all these three scripture together, you will get the revelation, you will understand what is the mind of God. और हम जब ये तीनों स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, तीनों कलाम पढ़ेंगे, तो हमको अंदाजा होगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है. It is very clearly written, Jesus will baptize us with the Holy Spirit and with fire. और इधर 3 Luke 3:16. और लूक 3:16 में लिखता है, तो यहोवा ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों को बंद खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. We just saw in the beginning scripture in 1 Corinthians 12:13, the Holy Spirit has separated us from the sinful body and he has baptized us in the Jesus Christ body. और हम देखते हैं कि पाकरू ने हमें अंधकार से निकाल के यीशु मसीह के बदन में जोड़ दिया. And so we became Christians. और हम मसीह बन गए. And as we became Christians, that's the evidence, we took the water baptism. और हम जानते हैं कि जब हम मसीह बन गए, हमने पहला दृश्य किया कि हमने बपतिस्मा लिया. Because Jesus told, baptize the disciples, not the infant, not the children. और यीशु मसीह ने कहा कि शागिर्द को, उसके चेलों को बपतिस्मा देने के लिए कहा. So when we became disciple, we took the water baptism. और जब हम उसके चेले बन गए, उसके शागिर्द बन गए, तब हमने जाके बपतिस्मा लिया. Hallelujah. As we obeyed the water baptism, as we obeyed his commandment in the water baptism, as we fulfilled his will in the water baptism, जैसे उसकी मर्जी को हमने पूरा किया बपतिस्मा लेने के with wholehearted, और पूरे दिल से हमने बपतिस्मा लिया. now in the scripture, hallelujah, the John the Baptist says, I am baptizing in the water, but you will receive one more baptism that is called baptism of the Holy Spirit. और यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि अभी तो आपने पानी का बपतिस्मा लिया, पर एक और बपतिस्मा होगा जो पाकरू के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए होगा. Means how we were immersed inside the water in water baptism. और जिस तरह से हमने बपतिस्मा लेते हुए पानी के अंदर डूब गए थे, So Jesus will immerse us in Holy Spirit. और उसी तरह से यीशु मसीह हमें पाकरू के अंदर डुबा देगा. Hallelujah. It is this baptism Jesus is able to give us. और ये बपतिस्मा सिर्फ यीशु मसीह के जरिए हमें मिल सकती है. So beauty of this baptism, it is written, he will baptize you with the Holy Spirit. और जैसे कि है, जैसे कहा है कि वो आपको पाकरू का बपतिस्मा देगा. And with fire. और दूसरी बात है, वो आपको आग का बपतिस्मा भी देगा. Hallelujah. The God want to give this as a gift to us. और परमेश्वर चाहता है कि ये तोहफा मिले. But sad news here. पर एक दुख की खबर इधर है. But God never gives
any of his gift to the lazy person. पर ये उसके तोहफे वो कोई भी एक जो काम नहीं करने वाला जो लेजी है उसको आलसी को खुदा का राज में कुछ नहीं मिलेगा, इवन स्वर्ग भी नहीं मिलेगा. In another study I will teach you. खुदा ने एक को 5 टैलेंट और एक को कितना दिया? 3 या 2? 3 और 2. ओके, और एक को 3 दिया और एक लास्ट वालों को 1 दिया. एक वाला लेजी था, जो लेजी के पास जो था उसको ले लिया और उसको दंड दे दिया. Means in the kingdom of God, lazy will not prosper, the lazy will not enter the heaven. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आलसी मनुष्य को कुछ मिलेगा नहीं और उसकी कभी तरक्की होगी नहीं. God want to give us the baptism of the Holy Spirit. और परमेश्वर चाहता है कि वो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे. He want to immerse us in the fire. और वो चाहता है कि हमें आग का बपतिस्मा भी दे. So, hallelujah, his body can prosper, hallelujah, and expand and possess whole nations. ताकि उसकी बदन तरक्की करे और वो और फैले और बढ़े. Hallelujah. So, if I need the baptism of the Holy Spirit, I must have a vision of Christ in me. अगर मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए तो मेरे अंदर परमेश्वर के काम करने का कोई ख्वाहिश रहनी चाहिए. If you see Matthew chapter 28 verse number 18, 19, where Jesus given us the Great Commission. और हम देखते हैं कि मत्ती में 28 में 18 और 19 में हम पढ़ते हैं कि उसने हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है. He told all authority in heaven on the earth is given to me. और यीशु मसीह ने कहा कि सारा अधिकार इस स्वर्ग में और इस पृथ्वी में मुझे दिया गया है. Therefore you go. इसीलिए आप जाना, preach the gospel, और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना, and make the disciple, और उनको मेरा शागिर्द बनाना, and baptize them in the name of Father, Son and the Holy Spirit. और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना. So if this is your vision, अगर ये आपका एक आगे का मार्गदर्शन है कि मैं ये करने वाला हूँ, so you would say the purpose of my living is to preach the gospel, reach out the lost. अगर मेरा मकसद है कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं और जो भटके हुए हैं उनको परमेश्वर के रास्ते में लेकर आऊं. I want to be a vessel used by God for His glory. और मैं एक बर्तन बनना चाहता हूं जो उसके महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं. And you desire for it and you pray for it. Hallelujah. You are the right person to receive the baptism of the Holy Spirit and fire. और अगर आप ये ख्वाहिश करते हैं कि मैं ये शख्स हूँ जो खुदा के काम को करना चाहता हूँ तो परमेश्वर अपना पाखरू को आपके पर नाजिल करेगा. Hallelujah. So the many churches they celebrate Eid Pentecost, the feast of Pentecost. Praise God for that. और काफी कलीसिया आज के दिन को ईद पेंटेकोस्ट या पेंटेकोस्ट का फेस्टिवल जैसे बनाते हैं. But we should know why God want to give the Holy Spirit or the baptism of the Holy Spirit. पर आज ये जानना जरूरी है कि क्यों परमेश्वर हमें ये पाखरू का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है. There is 3 different level of experience in the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि 3 अलग-अलग तरह के अनुभव होते हैं पवित्र आत्मा में. The first experience in the life of sinner. और पहला तजुर्बा होता है जब एक पापी मन फिराता है. Hallelujah. When in the life of sinner, the Holy Spirit helps that sinner to realize he is a sinner. The Holy Spirit helps that sinner to repent. The Holy Spirit helps that sinner to come to Jesus. That's the first experience. और पहला तजुर्बा वो होता है कि जब हम देखते हैं कि हम गुनहगार थे, पाप में चल रहे थे और पाप से हमने मन फिरा के यीशु मसीह में आए, हमारी जिंदगी तभी बदल गई. If you read John chapter 16, it is written there, 8 I think. Yes, 8 it is written, hallelujah, when he has come, he will convict the world of sin and righteousness and of judgment. John 16:8. और यूहन्ना 16:8 में जब हम पढ़ते हैं, वह आकर संसार को, पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा. This is the first level of experience. और ये पहला तजुर्बा है पवित्र आत्मा का. According to me, this is the first encounter with human spirit. और ये पहला है कि जब एक पवित्र आत्मा एक इंसान के साथ उसका कनेक्ट हो जाता है. He is there from the beginning.
वो पाखरू पहले से ही है। Hallelujah. So here when the gospel is, when we heard the gospel, hallelujah, he helps us to repent from the sin. और जब हमको कलाम मिलता है, सुसमाचार मिलता है, तो पाखरू हमें सहायता करता है तौबा करने के लिए। So he speaks, he reveals Jesus to us. और वो यीशु मसीह को हमें और अच्छे तरीके से दिखाता है, जाहिर करता है। The second level of experience of the Holy Spirit. और दूसरा तजुर्बा है पवित्र आत्मा के साथ। Verse number 13, John chapter 16, verse number 13. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you. और हम आगे पढ़ते हैं कि दूसरा तजुर्बा यह है कि यूहन्ना 16:13 में लिखते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वह कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Hallelujah. It is very clear. It's the second experience when you allow the Holy Spirit to work in your life. और जब आप सहायता करते हैं पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। पवित्र आत्मा को सहायता नहीं, पवित्र आत्मा सहायता कर। If you allow, अगर आप उसको चाहेंगे कि वो काम करे आपकी जिंदगी में, if you desire the Holy Spirit to change your life, अगर आप ख्वाहिश करेंगे कि पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी को तब्दीली लानी है, yes, he is the one who brought you in Christ, into Christ. और वही पवित्र आत्मा शख्स है जिसने आपको यीशु मसीह में लेकर आया। Now the Holy Spirit will teach you or guide you. और अभी पाखरू आपको सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा आगे और किस तरह से चलना है, बढ़ना है। In spiritual life, we need Holy Spirit. We must need Holy Spirit. और हम देखते हैं कि अगर हमें रूहानी जिंदगी जीनी है, एक आत्मिक जिंदगी जीनी है, तो हमें पाखरू की जरूरत है। You think Holy Spirit is only power, He is only emotion or experience, you will lose His fellowship in your life. अगर आप पाखरू को इस तरह से देखेंगे कि वो एक सामर्थ है और वो सिर्फ एक चिन्ह है और वो सिर्फ कार्य करता है। My Bible says He is a teacher, He is a guide, He is the Spirit of God. और पर बाइबल कहती है कि पाखरू वो हमारे सिखाने वाला, हमारा मददगार है। Beautiful thing it is written, He speaks. और खूबसूरत बात है कि पाखरू बात करता है। So, hallelujah, the first experience, He will convict you, He'll help you to repent and come to Jesus. और पहला तजुर्बा ये देगा कि वो आपके अंदर यीशु मसीह के पास आने के लिए सहायता करेगा. And second experience, He will guide you, He will teach you, He will comfort you in Christian life. और वो आपकी सहायता करेगा, आपको मार्गदर्शन करेगा ये मसीह जिंदगी में चलने के लिए। Third experience, और तीसरा तजुर्बा होगा, if you are willing, अगर आप ख्वाहिश करते होंगे तो lift your hands and say, I am willing. और आप कह सकते हो कि मैं ख्वाहिश करता हूँ, If you are willing, मैं चाहता हूँ। hallelujah, there is no compulsory. If you are willing, if you are desire, then He will baptize you with the Holy Spirit and fire. अगर आप ख्वाहिश करते हैं, आप इच्छा करते हैं, तो वो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करेगा। You can argue here in this point, I have the Holy Spirit, why I need the baptism of the Holy Spirit. It is your choice. आप सवाल कर सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी पाखरू है, अभी मुझे पाखरू का बपतिस्मा क्यों चाहिए? So I want to show you the two scripture. Hallelujah. Let us read John chapter 16 and John chapter 14. Verse number 16 to 17, two scripture. Then we are going to read John chapter 20, verse number 22. First we read John chapter 14, 16 to 17. Okay, Lavina, start. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। अभी मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, जो यीशु मसीह ने अभी जो बोला हुआ बात, हालेलुया, ये पेंतेकोस्त का पहले बोला कि बाद में बोला था? हेलो, जो यीशु मसीह ने, हालेलुया, ये जो बात अभी बोली है, वो बात जीसस ने, हालेलुया, पेंतेकोस्त के बाद, पेंतेकोस्त होने के बाद बोले थे कि पेंतेकोस्त होने का पहले बोला था? पहले बोला था, करेक्ट, हालेलुया। उसका मतलब हालेलुया, पेंतेकोस्त का पहले ही पवित्र आत्मा
यीशु के साथ और चेलों के साथ था. Hallelujah. Before the Pentecost, before the Holy Spirit can come on the day of Pentecost, the Holy Spirit was in Jesus and with disciple. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन के पहले कही हुई ये बात है. इसका मतलब है कि यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा पहले ही से था. हालेलुया. खास करके चेलों के साथ पहले से ही था. I'm clear? Hallelujah. So we will going to read one more verse so to make you clear. John chapter 20 verse number 22. यूहन्ना का 20 में 22. यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो. Hallelujah. In the scripture it's very clear. Jesus breathed on them and said them receive the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका और कहा कि पवित्र आत्मा को ले लो. So my question, second question, when Jesus breathed upon them, did they receive the Holy Spirit or not? और मेरा सवाल है कि जब यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका तो उनको पवित्र आत्मा मिला या नहीं? हेलो, मिला कि नहीं मिला? मेरा मन बोलता है कि जरूर मिला, क्योंकि यीशु ने खुद वालों के ऊपर फूका था. Hallelujah. So these two scripture is the evidence they had the Holy Spirit before Pentecost. और ये दोनों कलाम सिद्ध करते हैं कि पेंतेकोस्त आने से पहले ही पवित्र आत्मा उनके साथ था. Then why Jesus is telling them, hallelujah, if you read Luke chapter 24 verse number 49, I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with the power, dunamis from above. Luke 24:49. और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उनको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो. We saw the two scripture in the John. The disciple already had the Holy Spirit. हम देखते हैं कि यूहन्ना में 2 जगह पर हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा पहले से ही पेंतेकोस्त से पहले से ही उनके पास था. Okay, but still Jesus is saying, wait, I will give you more. पर फिर भी यीशु मसीह कहता है कि तुम इंतजार करना, मैं तुम्हें और सामर्थ दूंगा. If you read Acts chapter 1 verse number 5, अगर हम पढ़ेंगे एक्ट्स में 1-5 प्रेरितों के काम में, Acts chapter Amal or Acts chapter 1 verse number 5, Jesus himself is saying, Jesus said for John, truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. So Jesus is giving more importance for the baptism of the Holy Spirit. इसीलिए यीशु मसीह भी हमें बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि हमें पानी का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है. I do agree you have the Holy Spirit, therefore you are living a holy life, a God-fearing life, but you have a greater blessing waiting for you if you desire. That's called baptism of the Holy Spirit. और मैं कहता हूँ कि पाखरू तो आपके पास है, इसीलिए आप पवित्रता में जी सकते हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हो. पर आपको परमेश्वर यीशु मसीह का वादा है कि वो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा. This is free. This is your property. It is in your name because this is a promise of God written in your name. क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए ये तोहफा है. परमेश्वर चाहता है कि हर एक जो उसके बदन का हिस्सा है वो पाखरू का बपतिस्मा पाए. So again Acts chapter 1 verse number 8. और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में 1 में हम 8 पढ़ते हैं. Why Jesus is emphasizing on the baptism of the Holy Spirit when already Holy Spirit was there with them? और क्यों यीशु मसीह और भी जोर लगा रहे हैं कि पाखरू का बपतिस्मा होना चाहिए जबकि पवित्र आत्मा उनके साथ पहले से ही था? We can read very carefully because key word is written there. हम अच्छे ध्यान से उसको पढ़ेंगे. But you shall receive power after that Holy Spirit come upon you, and you shall be witnesses unto me both Jerusalem and in all Judea, in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आई विल नॉट डिनाई दैट। और मैं कभी ये कोई शक नहीं है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आपका विजन, आपका दर्शन है यीशु के लिए गवाही बनना चाहिए, हालेलुया, जो नाश का रास्ते में जो रुए हैं वो लोगों को मैं बचाना चाहिए, एक पवित्रता का जिंदगी मैं जीना चाहिए, देन यू नीड द पावर फ्रॉम अबव। अगर आपको एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जो परमेश्वर को पसंद आने वाली है और जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, तो आपको एक सामर्थ मिलेगी स्वर्ग से। Amen. It is free. और ये जो सामर्थ है ये मुफ्त में मिलता है। It is written in your name. It is the promise of God. और ये आपके लिए वादा है, जो उसके बदन के हिस्सा है उनके लिए ये वादा है। Now you can satisfy what you have in you. और आप खुश हो सकते हैं, जो जितनी पवित्र आत्मा की सहायता आपको मिलती है उससे आप खुश रह सकते You हो। can thankful to God, or you can desire more. Daddy, this is the promise you have made in Luke chapter 24:49. This is the promise that you made in Joel chapter 2:28. This is the promise Jesus said in Acts 1:5. I need Holy Spirit upon my life so I can be a witness to you throughout this world, oh God. और इस तरह से आप ख्वाहिश कर सकते हो कि सिर्फ मैं इससे बस नहीं हूँ, इससे इतना ही काफी नहीं है, पर जैसे तूने वचन के अनुसार कहा था लूक 24:49 में कि तू मेरे ऊपर उंडेलेगा, तो मेरे ऊपर पाखरू तू उंडेल दे। Hallelujah. So I'm simplifying it. The Holy Spirit is in you, no doubt. और इसमें कोई शक नहीं है कि पाखरू आपके अंदर है। In 1 Corinthians, not going to read 1 Corinthians 3:16 and 17, 1 Corinthians 6 chapter 6 verse number 19, is all the scripture says that you are the temple of the Holy Spirit. Holy Spirit is in you. और जिस तरह से 1 कोरिन्थियन 16 में लिखता है कि 3:16 में लिखता 6:19 और 6:19 में लिखता है कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हो, आप उसकी हैकल हो। You can argue and you can lose the baptism of the Holy Spirit. आप सवाल जवाब कर सकते हो और पाखरू के बपतिस्मा को खो सकते हो। You can miss the very important promise of God which is given to you to experience salvation and enjoy the Christian life. आप सबसे अच्छे बातों को आपकी जिंदगी में खो सकते हो सवाल करके, नॉट सवाल करके, आर्ग्यूमेंट करके, मुझे ऑलरेडी पाखरू मिला है। देखो 1 कोरिन्थियन 3:16 में लिखा है कि पाखरू मेरे अंदर है, 6:19 में लिखा है कि मैं पाखरू का घर हूं और क्या के लिए पाखरू मुझे चाहिए। दिस इज लेफ्ट टू यू। It is, you are talking right, but there is something more than that. और उससे बढ़कर भी एक चीज है। Hallelujah. If you need, God is ready to give you. अगर आप ख्वाहिश करोगे तो खुदावंद आपको देगा। It is for you. क्योंकि ये आपके लिए ही है। Because you are in the body of Christ. क्योंकि आप यीशु मसीह के बदन के हिस्सा हो। And your vision to preach the gospel. और आपका ये आपके अंदर एक ख्वाहिश है कि आपके खुदा के कलाम को प्रचार करना। You have a vision of the Father. You have the vision of Jesus Christ to go and preach the gospel. आप प्रभु यीशु का काम करना चाहते हो, उसने जो आपको जिम्मेदारी दी है, तो वो काम पूरा करने के लिए आपको पाखरू की जरूरत है। So we see in Acts chapter 2 verse number 1 and 2. और प्रेरितों के काम में 2 में हम पढ़ेंगे। Jesus promised the Holy Spirit in Acts chapter 1:5 and 1:8. Now in Acts chapter 2:1 onwards, this promise is fulfilled. और हम देखते हैं कि जो उसने कहा था उसने वो पूरा किया। वो प्रेरितों के काम में 2 में 1 लिखते हैं। Yes. जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। Hallelujah. We can see here Holy Spirit came like a tongue of fire. हम देखते हैं कि यहाँ पर पाखरू आग किसी जीभे जैसे उनके ऊपर आ गए। Read that scripture once again. Holy Spirit उन के ऊपर और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। आग जैसे जीभे फटती जैसे दिखाई दी और क्या हो गया?
और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हर एक पर 8 ठहरी। कल अपोस्तल लोग 12 जन के पास नहीं, 120 जो डिसाइपल थे, जो प्यासे थे, जो भूखे थे, जिसका विजन था मैं खुदा के लिए खड़ा रहेगा, खुदा का सुसमाचार मैं प्रचार करेगा करके एक विजन के साथ जो लोग थे, वो लोगों के ऊपर क्या हो गया? फिर से पढ़ना आग। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर 8 ठहरी। कंटिन्यू। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हम देखते हैं कि ये सेम ग्रुप है जो यीशु के साथ थे, जो यीशु ने वो लोगों के ऊपर ब्रीथ किया था, ब्रीथ अपॉन देम, वो लोगों के अंदर होली स्पिरिट था, बट वो लोगों को ऊपर और एक ग्रेस और एक ब्लेसिंग गॉड ने दिया। दैट इज आग का जो आग के जीबे, अकॉर्डिंग टू माय इंटरप्रिटेशन वो लोगों को आग का बपतिस्मा। हालेलुया। हम देखा कि ही विल बैप्टाइज यू विद द होली स्पिरिट एंड फायर। अभी ये लोगों को पाखरू भी मिला और पाखरू का आग भी मिला। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आई वांट टू एनकरेज यू, इसलिए मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। Thank God you received the salvation. बहुत शुक्र, परमेश्वर का शुक्र है कि आपने नजात पाया। Thank God you taken the water baptism. खुदा का शुक्र है कि आपने बपतिस्मा भी लिया। Thank God you are the temple of the Holy Spirit. और खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर की हैकल है, उसके मंदिर हो आप। Thank God you are the body of Jesus Christ. और खुदा का शुक्र है कि आप उसके बदन के हिस्सा हो। Because you are in the body of Christ, क्योंकि आप उसके बदन के हिस्सा हो, इसीलिए you have a greater promise waiting for you. इसीलिए सबसे बड़ा वादा है जो आपका इंतजार करता है। If you desire अगर आप ख्वाहिश करते हो and ask the Father और अपने पिता से जब आप पूछोगे and surrender yourself to God completely without any reservation, और अपने आप को पूरी तरह से खालिस होकर आप समर्पित करोगे and believe in the promise of God. Lord, I thank you. This is promise you made for me. I believe. Baptize me with the Holy Spirit and fire. और आप कहोगे कि ये वादा मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए है और आज मुझे पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा देना। I prophesy over your life in the name of Jesus. और मैं आपके ऊपर घोषित करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से My Father will baptize you with the Holy Spirit and fire. और मेरा जो स्वर्गीय पिता है आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा और आग का बपतिस्मा दोनों देगा। It is free. और ये मुफ्त में आपको देगा। But you must have a thirst. पर ये अंदर से आपके अंदर प्यास होनी चाहिए लेने के लिए। You must have you should have that hunger. और आपके अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए कि ये मुझे चाहिए। And you should not have any negative thoughts. और इसके बाद आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। Negative thoughts like hallelujah, some group teaching the Holy Spirit is over. अभी पवित्र आत्मा नहीं है, वो जमाने में था। ऐसा नेगेटिव थॉट्स, ऐसा झूठ आपका माइंड में नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा का काम अभी खत्म हो गया। That is a devil's teaching. Remove that teaching. और किसका मन में ऐसा टीचिंग रहता है कि होली स्पिरिट इज ओनली पावर, होली स्पिरिट इज ओनली द इमोशन। ऐसा गलत टीचिंग आपका माइंड से निकाल कर जो खुदा ने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस को अपने माइंड में रख के, खुदा मैं तेरा बदन में हूं, आई एम द पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो आई डिजर्व दैट गिफ्ट इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इन माय लाइफ। और आप जब आप ये यकीन करोगे कि मैं यीशु मसीह का बदन हूं, तो ये बदन के अंदर पाखरू की जरूरत है, तभी आप जानोगे कि मुझे जरूरत है पाखरू की और ये मेरी डिजायर है, मेरी ख्वाहिश है, तब आपको वो पाखरू से भर देगा। आई एम एंडिंग माय मैसेज विद 3 minutes। और तीन मिनट में मैं मेरे मैसेज को खत्म करूंगा। How I know I received the baptism of the Holy Spirit, or the baptism of the fire of the Holy Spirit? और कैसे मैं जान पाऊंगा कि मैंने पाखरू का बपतिस्मा लिया है, आग का बपतिस्मा लिया है? The day you received the fire in you, और जिस दिन आपने उस आग का बपतिस्मा पाया है, it will spread in your family. और वो आपके घराने में फैल जाएगा। They will see a transformation in your life. और वो पहली बात तो आपकी जिंदगी में बदलावट को देखेंगे। They will see the zeal of God in your heart. और वो खुदा के उस आग को आपके अंदर देखेंगे। They will see, the heaven will see your prayer life is growing. और स्वर्ग देखेगा कि आपकी जो प्रार्थना की जिंदगी और बढ़ते जा रही है। And you will have a great boldness
to face any challenges in the name of Jesus. और तभी आपके अंदर इतनी सामर्थ होगी कि जो भी आपके सामने चैलेंजेस खड़े होते हैं उसका आप सामना करोगे, मुकाबला It करोगे। is not your power, it is God's power. अभी आप अपने सामर्थ से काम नहीं करोगे, पर परमेश्वर के सामर्थ से आप काम करोगे। And you are able to boldly declare what Paul has declared in Romans chapter 8. I will give the verse. और आप पूरे सामर्थ के साथ आप कबूल कर पाओगे जैसे पौलुस ने कबूल किया था। Okay, we'll read together. Let us go to Romans chapter 8. रोमियो 8 में हम पढ़ेंगे। You will boldly declare verse number 35, because when you are baptized with the Holy Spirit and fire, और जब आप पाखरू से बपतिस्मा पाओगे और आग से बपतिस्मा पाओगे। Romans chapter 8 verse number 35. और रोमियो 8 में 35 You will speak yourself. और आप अपने आप से कहोगे, Who shall separate me from the love of Christ? और आप कहोगे कि कौन मुझे खुदा के प्यार से अलग कर सकता है? Shall tribulations, क्या क्लेश, distress, या संकट, persecution, या उपद्रव, famine, या अकाल, nakedness, या नंगाई, peril, या जोखिम, sword? या तलवार? Verse number 37. Yet in all these things we are more than conqueror through him who loved us. और 27 में पढ़ते हैं, परंतु इन सब बातों से में हम उसके द्वारा जिससे हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। Hallelujah. How I will know this person is received the baptism of the Holy Spirit and fire? और किस तरह से पता चलेगा ये पाखरू से और आग से बपतिस्मा लिया है? His life will be holy and pure. और उसकी पहली जिंदगी होगी पवित्रता और पाकिज़गी। And he will have a boldness to preach the gospel. और उसके अंदर सामर्थ होगी ताकि वो खुदा के कलाम को सुना सके। He will have a passion to witness Jesus. और उसके अंदर इतनी तड़प होगी कि दूसरों को जाके वो सुसमाचार सुनाएगा। And whatever challenges will come, he will just laugh over them, because he have the Lion of Judah inside. He have the spirit of the Lion of Judah inside. क्योंकि जो भी उसके सामने आएगा तो वो उससे बेखबर होकर, क्योंकि जो बब्बर शेर है जो उसके अंदर निवास करता है वो सारे बातों का मुकाबला करेगा। So I'm ending my message about the baptism of the Holy Spirit. और यहाँ पर मैं इस शीर्षक को खत्म करूंगा। It is optional, it is not compulsory. और ये आपकी ख्वाहिश है, आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हो, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। In the kingdम of God, repentance, सबसे बड़ा बात है, hallelujah, without repentance there is no salvation. और बिना तौबा किए मन फिराए आप आगे बढ़ नहीं सकते। Believing Jesus Christ is the Son of God, hallelujah, accepting him the Lord and Savior, that is also compulsory. और दूसरी कंपलसरी चीज है कि आप यीशु मसीह खुदा का बेटा है करके मानते हो और उसको अपना मसीह बनाते हो। If you are truly repented and truly received Jesus as the Lord and Savior, walking in his ways, he is must. और जब आपने तौबा किया है यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह को अपना मसीह माना है, तो आप अभी उसका पीछा कर रहे हो। Walking with him is must. और उसके साथ चलना भी जरूरी है। And that will manifest holiness in your life. और जब यीशु मसीह के साथ चलते हो, उसके कलाम के अनुसार चलते हो, तो आपके अंदर पाकीज़गी और पवित्रता रहेगी। Hallelujah. So these four is must. और ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। If you miss anything one from these four, और ये चारों में से अगर आप किसी बात को आप चूक जाओगे, you will miss the rapture, you will miss the heaven. आप स्वर्गीय स्थान में लेकर नहीं जाओगे और स्वर्ग आपका स्थान नहीं होगा। But baptism of the Holy Spirit is optional. It is depends upon your vision, depends upon your desire. और पाखरू का बपतिस्मा पाना ये आपकी ख्वाहिश है। अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हो तो ये आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। Again, the sad news, the lazy guys will not receive the baptism of the Holy Spirit. और एक बात है, बुरी खबर है कि जो आलसी है उसको परमेश्वर का पाखरू का आत्मा नहीं मिलेगा। I am not a false prophet to tell you all will receive the Holy Spirit. No. Those who have a vision, those who have passion. Yes, Lord, I am called by you. I want to serve you. I want to lift your name. I want to be a witness for you. Come on, Lord, baptize me with the Holy Spirit. You are the right person. अगर मैं वो शख्स हूँ कि मैं आलसी के ऊपर तो परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं उंडेलेगा, पर आप कहोगे कि मेरे अंदर परमेश्वर के लिए जिंदा रहने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए मेरे अंदर ख्वाहिश है, तड़प है, तो फिर आखिर मेरे ऊपर नाजिल होगा। Hallelujah.
So we are spending some time in prayer, और हम थोड़ा समय प्रार्थना में जाएंगे thanking God for the gift of the Holy Spirit. और हम शुक्र करेंगे उसने इतना बड़ा तोहफा पाखरू हमें दिया है। Every born again person has the Holy Spirit. और हर एक जो नई सिरे से जन्मा है, जो यीशु मसीह का बेटा है, उनके अंदर पाखरू है। Those who have a passion to live in holiness, it is the evidence that Holy Spirit is in you. और जो ख्वाहिश करते हैं कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा और उसका आग आपके अंदर है, तो पाखरू आपके अंदर है। The baptism of the Holy Spirit is a bonus to you. और जो पाखरू का जो बपतिस्मा होना, यह आपके लिए उससे बढ़कर है। The baptism with the Holy Spirit and fire, it is the additional blessing, additional promise God has made for you. और ये सबसे मतलब उससे ज्यादा एक आपके लिए एक बोनस है, एक गिफ्ट है कि आपको पाखरू का आग का बपतिस्मा मिले। And you can receive this promise when you are on this earth. और ये सबसे अच्छी खबर है कि जब आप इस दुनिया में हो तो तभी आपको पाखरू का ये बपतिस्मा मिल सकता है। After going to heaven, we don't need the baptism of the Holy Spirit. और जब हम स्वर्ग में जाते हैं उसमें फिर पाखरू की गिफ्ट की जरूरत नहीं है। Hallelujah. This is for you and for your generation. और सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, पर आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी है। Hallelujah. I missed that scripture. It is written in Acts chapter 2. I'm not going there. Hallelujah. Just Acts chapter 2 verse number, I think, 21. Give me a second. Okay. The Peter says there, says 1 minute. Okay, it is written, hallelujah, the promise of the Holy Spirit, once you receive, hallelujah, once you receive the baptism of the Holy Spirit, hallelujah, if I go to heaven, hallelujah, the Holy Spirit will continue on my generation. हालेलुया। ये ऐसी बात है कि जब आपको पाखरू मिलता है, आप इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे, पर आपके पीढ़ी के साथ पाखरू रहेगा और वो उनको इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख अपने बच्चों के नाम में रखा है, अच्छी बात है। अगर गॉड ने आपको बुलाया, आप खुशी खुशी में गया, 10 लाख आपको बच्चों को मिलेगा। वैसे ही हालेलुया पाखरू, हालेलुया हमारे ऊपर जो है, जब खुदा मुझे बुलाता है, हालेलुया मैं हेवन में जाएगा, बट जो पाखरू है वो मेरा बच्चों के साथ रहेगा। Amen. Hallelujah. So if you want, I'll give the scripture quickly. That's in the Acts chapter 2. So there should not be any confusion. Yeah, this is 38. Acts 2:38, I'll read. The Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. 39, for the promise is to you. If you receive Jesus, this promise to you and your children. In another translation, and it is for your generation. Hallelujah. Can you read 39 please? क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Hallelujah. If you are passionate for God, अगर आप खुदा के लिए, आपके अंदर वो आग है, वो तड़प है, if you have a vision for God, और खुदा के लिए एक उसके काम करने का एक ख्वाहिश आपके you want to be a soldier in the kingdom of God, और उसके राज्य में एक सच्चे सिपाही बनना चाहते you हो, want to spread the gospel of Jesus, the light of Jesus, अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह का सुसमाचार आप सब जगह पर फैलाना चाहते the हो, God want to baptize you with the Holy Spirit. अगर ये आपकी ख्वाहिश है, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा और पाखरू का बपतिस्मा He will देगा, baptize you with fire, और वो आपको आग का बपतिस्मा देगा, and that fire will help you to spread the gospel. और वो आग आपको सहायता करेगा ताकि परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के That लिए। fire will make you flame of fire. और वही आग है जो आपको एक जलता हुए शोले जैसा बनाएगा। Hallelujah. So God bless you with these words. और खुदावंद आपको बरकत दे और आशीष दे इस कलाम के जरिए। Now it depends upon you. अभी ये आपकी आगे मर्जी है। If you keep on ask God, अगर आप लगातार खुदावंद से पूछते रहोगे, Lord, I need that fire in my life. खुदावंद वो आग को मैं मेरी जिंदगी में चाहता हूँ, Remove the laziness from me. और मेरे अंदर आलसीपना को तो निकाल दे। I want to be the flame of fire in your kingdom. और खुदावंद मैं एक जलती हुई आग का शोले बनकर इस्तेमाल I करना want to चाहता हूँ। preach the gospel. I want to reach out the unreached.
reached. और मैं जाके सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ जहाँ पर सुसमाचार नहीं गया, मैं वहां पहुंचना I want to deliver the people from the hands of the wicked one. और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को छुटकारा दूं शैतान के हाथों से। I want to destroy the cancer. I want to destroy the corona. I want to destroy the witchcraft. God, baptize me. The God will respond to your cry. अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे सहायता कर ताकि कैंसर की रूह है, कोरोना की रूह है, उसको मैं जला दूं, तो परमेश्वर आपको वो अभिषेक The देगा। corona cancer is the works of the devil. और जो कोरोना है, कैंसर है, वो शैतान के काम है। Jesus, Bible says in 1 John that Jesus appeared, manifested to destroy the works of devil. और यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया और अपने आप को जाहिर किया ताकि शैतान के कामों को नाश कर सके। And he has chosen you to destroy that works. और उसने आपको चुना है ताकि शैतान के कामों को खत्म करे। He want to baptize you so you can destroy the witchcraft. और वो आपको बपतिस्मा देना चाहता है ताकि शैतान के कामों को आप खत्म कर सकें। So you can deliver the people from the hands of the wicked one. ताकि आप जो शैतान के हाथ में जो बंदी रहे उनको आप छुटकारा दे सकें। So God bless you with this message. और खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के जरिए। We are going into prayer. और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। I request Brother Tanveer to pray that all those who are gathered and those who are watching live for me from the Logos for Nation, those who are passionate that God baptizes. We are one body. I may be in Abu Dhabi, you may be in Pakistan, another may be in USA, but we are one body in Christ Jesus. As we are one vision, the Lord will prosper the body of Christ. और जैसे ये हमारी ख्वाहिश है कि हम खुदा कि प्रभु यीशु के बदन हैं, हो सकता है हम अलग अलग जगह पर हो, पर जब हम साथ में दुआ करेंगे तो हम यीशु मसीह के बदन को में और भी उसका सामर्थ्य आएगा और आग का बपतिस्मा होगा और ये उसका सुसमाचार अलग अलग जगह पे पहुंचाएगा। And once Tanveer complete his prayer, I request Sister Lena to continue with the prayer that God baptize his body with the Holy Spirit and fire. The God, hallelujah, empower us because it's the desire of God. Let us be baptized with the fire of the Holy Spirit. और तनवीर प्रार्थना करने के बाद सिस्टर लीना दुआ करेगी। And after Brother Sholender will pray, hallelujah, for the body of Christ in India, body of Christ in UAE to prosper, and God bless UAE and God bless India and all other nations. और इसी तरह से फिर आप शिलेंद्र ब्रदर प्रेयर करेंगे, सारे जो यीशु मसीह का बदन है अलग अलग जगह पर है, उन सब बदन के लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। And in the end prayer, hallelujah, Brother Edgar will lead us, and if there is a time I will take your prayer points. We together pray for you because victory is yours. God has sent the word. Our help is come from the Lord who created the heaven and the earth. We are holding that promise. We will experience that in Jesus name. और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी तो आप बाद में शेयर करना, फिर हम साथ में मिलकर दुआ करेंगे इन बातों के लिए। Yes, Brother Tanveer, please start.